Good morning student. After half yearly exam, welcome again in this online class. Before half yearly exam, we have completed 5 chapters of geography, and today we will start chapter 6, manufacturing industries. This is also called second chapter to manufacturing industries. In this chapter we will be covered the following topics. First, importance of manufacturing industry, location and classification of industries. Second, agro based industries. Third, mineral based industries. And fourth, industrial pollution, environment degradation and control of environmental degradation. There are 4 topics which we will be covered in this chapter. First of all, a flow chart is given in this book of this chapter. This will give you a short view of this chapter. Flow chart है industries, their locations, their classifications. Location में physical factors, human factors, key factors. Physical factors में क्या आएगा? Availability of raw material, climate, water. Human factor में labor, power, transport, capital, market, government policies. And key factor में least cost. क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. की इंडस्ट्रीज जो आयरन इंडस्ट्रीज है वो की इंडस्ट्रीज है. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, joint sector, private sector, cooperative sector. On the basis of weight of raw material and finished good, heavy industries and light industries. There are complete chapter. In this chapter we will discuss these topics in details. Okay student, then start this chapter, manufacturing industries. And its first topic, importance of manufacturing industrial location and classification of industries. But first of all, what is manufacturing? Manufacturing क्या है? Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. यानी कि जो raw material है उनसे कोई valuable things को बनाना ही manufacturing है. Productions of good in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. अब ये फर्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हम स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. अब ये जो इंडस्ट्री है, जो सेकंड सेक्टर है, इसका नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स. आपको पता है एंशिएंट टाइम से ही हमारा कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारी जो जीडीपी में जो फर्स्ट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो हमारा सेकंड सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कम ही रहा है. इसलिए सम जो और जो एशियन इकोनॉमीज़ है, हमारी नेबर कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कम कंट्रीब्यूशन है. विद अप्रिशिएट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द industry to improve productivity, economists predict the manufacturing can achieve its largest over the next decade. हमने अब अपने सेकंड सेक्टर को भी फोकस किया है कि प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, और जो इकोनॉमिस्ट है कंट्री के, वो सेकंड सेक्टर में काफ़ी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी स्कोप देख रहे हैं, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले डिकेड में ये हमारे जीडीपी का मेन टारगेट बन जाएगा. Industrial locations are influenced by availability of raw material, labor, capital power and market. जो कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री ओनर कहीं इंडस्ट्री अपनी बनाना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या बेस चाहिए, क्या क्या फाउंडेशन चाहिए, वो एक ऐसी लोकेशन पर इंडस्ट्री लगाना लाइक करेगा. उसके लिए बेनिफिशियल भी वहीं रहेगा जहाँ उसे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, लेबर की अवेलेबिलिटी बनी रहे, कैपिटल उसके पास सफिशेंट हो, और पावर सप्लाई भी रहे, और वहाँ पर उसके आसपास मार्केट भी हो जहाँ वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके. Second, it is rarely possible to find all these factors available at one place. और ये जो सारे फैक्टर्स अभी मैंने बताए हैं, रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पावर एंड मार्केट, ये सब कई बार एक
वन प्लेस पर नहीं मिलते. मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज agglomeration economies. Location and classification. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas states such as Mumbai, Kolkata, Chennai. पहले जो प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश टाइम में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर थे, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री थी, वो वहाँ उस प्लेस पर ज़्यादा लोकेटेड होती थी जहाँ पर वो ओवरसीज ट्रेड कर सके. जैसे जहाँ पर पोर्ट होती थी मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में. Industries may be classified on the basis of source of raw material as agro based and mineral based. इंडस्ट्री के जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 टाइप्स मिलेंगे. एक तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो माइनिंग पर डिपेंड करती है. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल एज बेसिक और की इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट स्मॉल स्केल्स एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. Public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. And cooperative sector industries are based on the bulk and weight of raw materials and finished goods as heavy and light industries. ये आपका सारा क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी क्लियर किया है. अभी जो मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन बताया इंडस्ट्री के, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसको हम एक बार और डिटेल में कर लेते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज which obtain raw materials from agriculture are known as agro based industries. For example, cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber and sugar are example of agro based industries. And mineral based industries, industries which obtain raw materials from minerals are known as mineral based industries. Example, iron and steel, cement, aluminum, petrochemicals. These industries are called mineral industries. अब ये जो है आपका की जो इंडस्ट्री मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या है. इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स. जैसे जो इंडस्ट्री अदर इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है उसको बेसिक या की इंडस्ट्रीज कहा जाता है. एग्जांपल, आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग. ये जो इंडस्ट्रीज आती है वो की इंडस्ट्रीज में आती है. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स. जो इंडस्ट्री ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ करते हैं उनको कंज्यूमर इंडस्ट्री कहा जाता है. जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन्स, जो भी हम डेली यूज़ करते हैं जो चीज़ें वो जहाँ वो बनती है उस इंडस्ट्री को हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं. इसमें फिर एक क्लासिफिकेशन हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 crore ऑन एन इंडस्ट्री इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, more than 1 crore. For example, iron and steel industry. Cement industries, while the investment is less than 1 crore on an industry, it is considered as a small scale industries. जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्रीज है, ये क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है. अब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलपमेंट की बैकबोन क्यों माना जाता है? बिकॉज it is not only helps in modernizing agriculture but also forms the backbone of our country. ये हमारे प्राइमरी सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है. जैसे प्राइमरी सेक्टर के लिए जो इक्विपमेंट है वो सेकंड सेक्टर ही बनाएगा अगर वो वहाँ पर अच्छे इक्विपमेंट बनते हैं. जैसे ट्रैक्टर है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, ये सारे और भी जो एग्रीकल्चर में जो चीज़ें यूज़ होती है, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो सब सेकंड सेक्टर उनको बहुत गुड क्वालिटी का बनाता है. तो उससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. और जो हमारा सेकंड सेक्टर है वो भी एक हमारी कंडीशन है कि जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिमिनेट होती है. थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स. ये जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाता है. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू एज प्रोस्पर्स. हम अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको मीनिंगफुल थिंग्स में चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कि हमारी प्रोस्पेरिटी का एक साइन है, एक सिंबल बन जाता है. अब इसी टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन और डिस्कस हुआ है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की वो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से ही मेजर की जाती है.
ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, दे आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स. Next, industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in backward areas. कि जो बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ एग्रीकल्चर के स्कोप कम है, वहाँ पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके हम वहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और इनको एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं. इंडियाज़ प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डिवर्सिफाइंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. और इससे ही हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही हमारी जो प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज होती है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज. जो ओनरशिप पर पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है. पब्लिक सेक्टर इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे भेल है, सेल, BHEL भेल, SAIL, NTPC, ये पब्लिक सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट रन करती है. प्राइवेट सेक्टर इट इज़ ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. एग्जाम्पल टिस्को, रिलायंस, बजाज, ऑटो लिमिटेड, डाबर वगैरह. ये सब क्या है कि जो इंडिविजुअल जो प्राइवेट लेवल पर जो रन होती है उनको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ ज्वाइंट वेंचर आर इन ज्वाइंट सेक्टर. कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल मिलकर चलाते हैं, उनको ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, मारुति उद्योग है, ये एग्जांपल है ज्वाइंट सेक्टर के. और कोऑपरेटिव सेक्टर, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्किंग और बोथ. दे पूल देयर रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लूजेस proportionately. The sugar industries in Maharashtra and the core industry in Kerala are good example of this type of industries. ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स जैसे जो प्रोड्यूसर होते हैं और जो सप्लायर्स होते हैं वो मिलकर कोई अपना ज्वाइंट यूनिट बनाते हैं, ज्वाइंट इंडस्ट्री बनाते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं. सेकेंड टॉपिक है आपका बुक का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नोन एज एग्रो बेस्ड. जहाँ एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल एंड नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन from raw material to the highest value added product. In ancient India, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. The first successful textile mill was established in Mumbai 1854. ये ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश की थी मुंबई में 1854 में. There are over 1900 cotton and human made fiber textile mill in India. ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट देने वाली. The hand-spun khadi provide large-scale employment to weavers in their homes as a cotton industries. India has the second largest installed capacity of spindle in the world with 43.13 million spindles after China. इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेकेंड प्लेस है चाइना के बाद. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस इन द एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. जूट इंडस्ट्री में इंडिया का सेकेंड प्लेस है, बांग्लादेश का फर्स्ट प्लेस है. There are over 80 jute mills in India. The first jute mill was set up near Kolkata in 1859 at Rishra. ये कोलकाता में फर्स्ट जूट मिल लगी थी 1859 में, ये भी ब्रिटिश ने ही बनाई थी. इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांड. गुड शुगर में इंडिया का सेकंड प्लेस है, लेकिन गुड़ और खांड में इंडिया का फर्स्ट प्लेस है. अबाउट 60% शुगर मिल्स आर इस्टेब्लिश इन यूपी एंड बिहार, क्योंकि यहाँ पर शुगर केन के प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रीज़ है वो बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में है.
अब इंडस्ट्री में जो चैलेंज क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण हमारा जो सेकंड सेक्टर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट है द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। जो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है इसका सीजनल होता है कि जिस सीजन में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है उसी सीजन में वो इंडस्ट्री चलती है, बाकी टाइम वो इंडस्ट्री बंद रहती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन की जब प्रोडक्शन आएगी तभी चलेगी। सेकेंड, ओल्ड मशीनरी एंड इन एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड जो एक बड़ा रीजन है हमारे इधर की कंट्री में ओल्ड मशीनरी का यूज़ किया जाता है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कम होता है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग शुगर केन टू फैक्ट्रीज। और कई बार जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण भी वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाता। देयर इज़ नीड टू मैक्सिमम द यूज़ ऑफ बैगेज, और उसको पैक करने के लिए बैगेज की भी हमें नीड है। थर्ड टॉपिक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे अभी एग्रो बेस्ड रीड किया था, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स आर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो माइनिंग पर, जो मिनरल पर डिपेंड करते हैं उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। Third, production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. हमेशा जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होती है और उसका कंजप्शन, और इसमें जो कि इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री उसकी बात करेंगे हम, वो एक कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स है, क्योंकि अदर जो सारी इंडस्ट्री है वो स्टील इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करती है। Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light resistance to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metal. ये एल्युमिनियम के बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज। केमिकल इंडस्ट्री कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलप है। एशिया में सेकेंड प्लेस है इसका और वर्ल्ड में 12th प्लेस है। इट कंप्रोमाइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers, ammonium phosphate, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. ये जैसे फर्टिलाइजर है जिनका एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज द इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्री, ब्रिजेज, रोड, एयरपोर्ट, डैम एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री नीड्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम एंड जिप्सम। सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिनियम एंड जिप्सम, और ये सब हमें माइनिंग से ही मिलते हैं, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री भी मिनरल इंडस्ट्रीज में ही आती है। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड vehicles for quick transport of goods, services and passengers. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जहाँ पर व्हीकल बनाए जाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI brought in new technology and aligned the automobile industry with global developments. The electronic industry produces from transistor sets to television, telephone, cellular phone, telecom, pager, telephone exchange, radar, computer and many other equipment required by telecommunication industries. बेंगलुरु हैज़ emerged as the electronic capital of India. बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। By 2010-11, software technology parks of India have come up across 46 locations at different centers of India. तो ये सब जो डिस्क्रिप्शन है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का बताया मैंने। सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में मैंने बताया, इसका और रीड कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। और जो ये IT इंडस्ट्री है इसके क्या सिग्निफिकेंस है? ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अप टू 31 मार्च 2005 द IT इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओवर 1 मिलियन पर्सनस। ये इंडस्ट्री भी अब इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टू गिविंग एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ इनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्शन
आर वुमेन। और जो सबसे इसमें अच्छी बात वो है कि इसमें जितने पीपल एम्प्लॉयड है उसमें 30% वुमेन है। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर। ये BPO के कारण ये जो सेक्टर है वो एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी बन गया है। द कंटिन्यूस ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। Water pollution is caused by organic and inorganic industries waste and influents discharge into water bodies। इसमें हम पोल्यूशन के बारे में रीड करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का रीज़न क्या है कि जब अनडिजायरेबल गैसेस एयर में ज़्यादा आ जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है कि जब फैक्ट्री का या जो वेस्ट है उसको ज़्यादा रिवर में, पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है तो वाटर पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन occurs when hot water from factories and thermal plants in drained into water bodies before cooling। उस हॉट वाटर को जो फैक्ट्रियों से ये निकलता है उसको बिना ठंडा किए ही ड्रेन में डाल दिया जाता है, जिसके कारण थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में जब वो बहुत ज़्यादा शोर होता है, चाहे वो इंडस्ट्री का शोर है, चाहे वो मशीनरी का है, फैक्ट्री का है, जनरेटर का है, ये सारा जो नॉइज है उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू वाटर बॉडीज। ओवरड्रोइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्ड बाय इंडस्ट्री शुड बी रेगुलेटेड लीगली। और नेक्स्ट इसमें जो एक टॉपिक भी आपका है वो NTPC हैज़ ISO 14001 सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप डिटेल में अपनी बुक में रीड करेंगे। इसमें आपका एक जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। Step to minimize the environmental degradation caused by industrial development in India are following. First, minimize use of water for processing by reusing or recycling it in 2 or more successive stages. Second, harvesting of rainwater to meet water requirements. Third, treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds. Next, particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Next, machinery and equipments can be used and generators should be fitted with silencers. Next, almost all machineries can be redesigned in increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing materials may be used apart from personal use of earplugs and earphones. These are measures which we should adopt to minimize the environmental degradation. In the last, there is a revision chart of this chapter. With the help of this revision chart, we can revise the whole chapter. The process of using raw materials to produce more valuable goods in large quantities is called manufacturing. Manufacturing sector is the backbone of economic development. Manufacturing industries play a major role in the economic development of a country. Manufacturing industries help in modernizing agriculture. Agriculture and industry go hand in hand. Agriculture provides raw material to industries. Industries help in raising productivity of agriculture. The key factor in influencing all decisions about setting up a manufacturing industries, including its location, is the low cost, National Thermal Power Corporation यानी NTPC, National Thermal Power Corporation has demonstrated how conservation of environment and natural resources can happen simultaneously with industrial growth.
Various ways should be adopted to control environmental degradation. The rapid growth in industries has also led to increase in pollution of land, water, air, eventually resulting in degradation of environment. Major industries क्या क्या है? Textile industries, jute industries, tea, coffee and sugar industries, edible oil industries, iron and steel industries, aluminum smelting, chemical, fertilizers, cement, automobile, information technology and इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ये सब मेजर इंडस्ट्रीज है. इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल पावर एंड मार्केट. ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ कंप्लीट हो गया. इस वीडियो के बाद ये चैप्टर अपनी टेक्स्ट बुक से भी आप रीड कीजिए टॉपिक वाइज, फिर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, बाय.